नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनिया आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज का बीदर जिला कांग्रेस कार्यालय में भव्य स्वागत। मंत्री रहीम खान द्वारा भेजे गए उमरा के इमाम और मौजूद हैदराबाद के लिए बीदर से रवाना। सीएम सिद्धरामैया ने धन की कमी के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। बी श्रीरामुलु ने कोर कमेटी की बैठक के दौरान भाजपा नेतृत्व पर अनुचित व्यवहार का लगाया आरोप। आईएमडी ने उत्तर कर्नाटका में कोहरे की चेतावनी दी, वाहन चालकों से सावधानी बरतने का किया आग्रह। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर के एक दिवसीय दौरे पर आज ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज पहुंचे। बीदर शहर में प्रवेश करते ही जॉर्ज जिला कांग्रेस समिति के कार्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर सांसद सागर खंडे, पूर्व विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली, अमृतराव चिमकोड़े, सुधाकर कल्लूर सहित अन्य उपस्थित रहे। मंत्री जॉर्ज ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ನಾವು ಎಸ್ಕಾಂ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚುನಾಯಿತ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಪಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಂಪಿನೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬರಗಾಲ ಇದ್ದರೂ ಸಮೇತ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕರೆಂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ IPSETಗೆ 7 ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ 5 ಅವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರದಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಈಗಾಗಲೇ 17,000 ಮೆಗಾವಾಟ್ ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೂ ಸಮೇತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಕರೆಂಟ್ ಕಟ್ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುಸುಮ್ C ಮತ್ತು B ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ರೈತರಿಗೆ ಹಗಲು ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸುಮಾರು 3,000 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಅಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡುವ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕರೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ IPSETಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಬಹುಶಃ ಇದು 1-1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮತ್ತು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. KERC ಅವರು ₹3.19 ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವಾಗ ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅದೇನು ನಾವೇನು ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಖಾಸಗಿಯವರು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಫೀಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬಂದರೂ ಸಮೇತ CM ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, 1 ಎಕರೆಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅದು DC ಹತ್ರ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೇಕು. ಆ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ बीदर शहर से 5 पेश इमाम और 5 मौजन को नगर प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान ने अपनी ओर से उमरे पर भेजा है। आज शहर के जामिया मस्जिद में सभी स्टैंड किए गए 13 लोग, जिसमें 5 इमाम और 5 मौजन और अंजुमन खादिमुल हुजाज सहित एक गुलबर्गा से पेश इमाम को हैदराबाद के लिए रवाना किया गया। आज सुबह 11 बजे मस्जिद परिसर में सभी को एकत्रित कर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी की गुलपोशी की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में रहे मंत्री रहीम खान के भाई एवं रूही शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष अजीज खान का सम्मान किया गया। इस मौके पर नगर सभा सदस्य मोहम्मद रियाजुद्दीन इरशाद अली का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर अंजुमन खादिमुल हुजाज के अध्यक्ष सैयद सगीर अहमद और उपाध्यक्ष अयाजुल हक की भी गुलपोशी की गई। इस अवसर पर अंजुमन के पदाधिकारी मोहम्मद गौस कुरैशी, मोहम्मद शरीफ, डॉक्टर मसूद, सैयद आसिफ हुसैन, सैयद अंजीर खादरी आदि ने सभी उमरा पर जाने वाले पेश
इमाम और मौजन की गुलपोशी के करके उनसे दुआओं के लिए आग्रह किया। सभी आज हैदराबाद के लिए बस से रवाना हुए। अजीज खान ने बस को चालना दी। कैमरामैन पुराज का कवरेज। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बड़ा खुशी का मौका है कि यहाँ बीदर से रियासती वज़ीर हज व बल्दी नज़्म नुस्ख जनाब मोहम्मद अब्दुल रहीम खान साहब की जानिब से पेश इमामों और मौज़नों को उम्रे के लिए भेजा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी अच्छी और ख़ुशी की बात है कि वज़ीर मौसूफ़ ने ये बड़ा अच्छा काम किया। आज यहाँ से बीदर से ये काफ़िला यहाँ से रवाना होगा और शमशाबाद एयरपोर्ट जाएगा और 14-15 दिन का वो सफ़र उम्रा व ज़ियारत मुक़द्दसा से मुशर्रफ होकर फिर वापस आएगा। इंशाअल्लाह इन तमाम लोगों से गुजारिश है कि ये हमारे अंजुमन के लिए, जनाब रहीम खान साहब के लिए, शहर बीदर के लिए, रियासत कर्नाटका के लिए और सारे मुल्क में अमन व अमान के लिए वो अल्लाह के हुजूर दुआ करें। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके सफ़र को आसान करे और इनकी दुआ को कबूल फरमाए। इमामों और पेशमामों में 14 हज़रात हैं और जो है ना उनके अलावा उनके जो ख़वातीन हैं सब मिलाकर आज ये 30 का काफ़िला यहाँ बीदर से रवाना हो रहा है। ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज ने जेस्कॉम के अधिकारियों को ट्रांसफार्मर मरम्मत, परिवहन और बिजली के तार पोल की मरम्मत और कनेक्शन सहित किसानों की विभिन्न बिजली समस्याओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देने का निर्देश दिया। जिला पंचायत सभा भवन में आयोजित ऊर्जा विभाग की प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष सूखे के बावजूद गर्मी में भी बिना किसी परेशानी के पर्याप्त बिजली आपूर्ति की गई तथा विभाग इस वर्ष भी उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति करने के लिए तत्पर है। समय भी चूंकि बिजली से संबंधित कुछ तकनीकी खराबी कभी कभी आती रहती है, इसलिए कभी कभी समस्याओं को हल करने में समय लग जाता है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मुद्दे पर चर्चा और समाधान करना चाहिए। राज्य में वर्तमान में प्रतिदिन 16 से 17 हजार मेगावाट बिजली की मांग है। इस वर्ष कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। उन्होंने कहा यदि गर्मियों में मांग बढ़ती है तो वे बिजली खरीदने के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि लाइनमैनों की कमी को दूर करने के लिए अप्रैल के अंत तक 3000 लाइनमैनों की नियुक्ति की जाएगी। मंत्री ने कहा कि अवैध वैध मामले का भी जल्द समाधान किया जाएगा। बीदर जिले में कुल 1480 मामले हैं और राज्य के इस मुद्दे पर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। वन, पर्यावरण और जीव विज्ञान मंत्री तथा बीदर जिले के प्रभारी ईश्वर बी खंडे ने मंत्री केजे जॉर्ज की मौजूदगी में अधिकारियों से पूछा कि बीदर जिले में बिजली दुर्घटना में मरने वाले 9 लोगों की परिवारों को अब तक दिए गए मुआवजे के बारे में क्या जानकारी दी गई है। केजे जॉर्ज ने अधिकारियों को 3 दिन के भीतर मुआवजा देने का निर्देश दिया है। ईश्वर बी खंडे ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में 13 उपकेंद्रों की स्थापना के लिए स्थान के संबंध में कोई समस्या हो तो स्थानीय विधायकों एवं जिला कलेक्टरों से चर्चा कर तत्काल कार्यवाही करें। कैमरामैन पुपराज का कवरेज। बीदर शहर में शाहपुर गेट पर रहे रेलवे क्रॉसिंग गेट कल बुधवार को यशवंतपुर बीदर एक्सप्रेसवे जाने के समय गेट खुला रहने की खबर केपी न्यूज ने चलाई थी, जिसमें केपी न्यूज ने कहा था कि गेट खुला रहने का कारण स्पष्ट नहीं है। आज जब केपी न्यूज ने खबर की पुष्टि की और डॉक्टर मसूद ने रेलवे विभाग के अधिकारियों से बात करके कारण जाना तो पता चला कि रेलवे गेट का क्रेन का काम चल रहा था, जिसके कारण इमरजेंसी ग्रिल गेट का उपयोग किया गया था, जिसे ट्रैफिक को ट्रेन के जाते समय रोका गया था, जो कैमरे में कैद नहीं हो पाया था। वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन के जाने के समय 2 और की वाहनें रुकी हुई थी। इसका कारण इमरजेंसी ग्रिल गेट बंद रहना था। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी प्रकार की कोई चूक नहीं हुई है। आज केपी न्यूज अपने दर्शकों तक कारण स्पष्ट कर रहा है। कैमरामैन महेश का कवरेज। रोकते समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी
KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को बोर्ड और निगमों की नियुक्ति के लिए धन की कमी के भाजपा के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। सिद्धरामैया ने संवाददाताओं से कहा, भाजपा झूठे और राजनीति से प्रेरित आरोप लगा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने गुरुवार को कांग्रेस सरकार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए निर्धारित धन का दुरुपयोग करने और धन उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, इससे ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद इन समुदायों के दर्द, पीड़ा, दुख और शिकायतों का समाधान नहीं किया गया। भाजपा के भीतर मतभेद एक बार फिर सामने आए हैं, जब वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री बी श्रीरामुलु ने पार्टी कोर कमेटी की बैठक में भाजपा महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों पर खुले तौर पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। अग्रवाल ने उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने संदूर उपचुनाव के दौरान पार्टी उम्मीदवार के लिए काम नहीं किया। कोर कमेटी की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, DV सदानंद गौड़ा, वरिष्ठ भाजपा नेता CT रवि, श्रीरामुलु, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर अश्वत्थ नारायण और अन्य शामिल हुए। श्रीरामुलु ने बताया, बैठक में अग्रवाल ने सबके सामने मुझसे बदतमीजी से बात की और आरोप लगाया कि मैंने हाल ही में हुए संदूर उपचुनाव में काम नहीं किया, जिसकी वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मैंने नामांकन दाखिल करने से लेकर पार्टी उम्मीदवार बंगारू हनुमंत के लिए काम किया। कोई बिना सबूत के आरोप कैसे लगा सकता है। श्रीरामुलु ने आगे कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र, जिन्होंने उन्हें पार्टी उम्मीदवार के लिए काम करते देखा था, उनका बचाव नहीं किया। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। भारतीय मौसम विभाग IMD ने 23 से 28 जनवरी तक उत्तर कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम और कोहरा या धुंध छाए रहने का अनुमान लगाया है। इससे वाहन चालकों को आगाह किया कि वे यात्रा करते समय विशेष रूप से सुबह और शाम के समय राजमार्ग पर कोहरे के अलर्ट की नियमित जांच करते रहे। भारतीय मौसम विभाग ने कहा, कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में खासकर उत्तरी और उत्तरी आंतरिक भागों में दृश्यता 50 से 100 मीटर तक कम हो गई है। विभाग ने चेतावनी दी कि कुछ गांवों में इलाकों में यह 20 मीटर तक गिरी। IMD ने कहा, सड़क दुर्घटना में वृद्धि केवल खराब सड़क की स्थिति या लोगों द्वारा गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग के कारण नहीं, बल्कि खराब दृश्यता भी है। भारतीय मौसम विभाग बेंगलुरु के प्रभारी निदेशक N पुवियारन ने बताया, कोहरे की चेतावनी के साथ मौसम संबंधी अपडेट समय समय पर विभिन्न मौसम प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड किए जाते हैं। नागरिकों को उन्हें जांचना चाहिए। केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने कर्नाटक के औद्योगिक और आर्थिक आधार को मजबूत करने के प्रयासों को समर्थन देने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। बुधवार को नई दिल्ली में राज्य के उद्योग मंत्री MB पाटिल के साथ बैठक के दौरान कुमारस्वामी ने भारत की विकास गाथा को बढ़ावा देने में सहयोगात्मक प्रयासों के महत्व को स्वीकार किया। बैठक के दौरान पाटिल ने वैश्विक निवेश आकर्षित करने और राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए कर्नाटक की पहल पर जोर दिया। विज्ञप्ति में कहा गया कि कुमारस्वामी ने पाटिल के प्रयासों की सराहना की। कर्नाटक में परिवर्तनकारी अवसर लाने के GIM की बड़ी सफलता की कामना की। विधानसभा में विपक्ष के नेता R अशोक ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने बेलगावी में आयोजित गांधी का भारत कार्यक्रम के लिए ठेकेदारों से लिए गए 60% कमीशन का इस्तेमाल किया था। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और कांग्रेस विधायक स्वयं शिकायत कर रहे हैं कि उनके निर्वाचन क्षेत्रों में विकास ठप हो गया है। कांग्रेस ने चुनाव पूर्व वादा किया था कि वह लोगों पर बोझ डाले बिना गारंटी योजनाओं को लागू करेगी।
जब हम सो रहे थे तब मौत हमारे पास आई। यलापुर के निकट गुलापुर में हुए भीषण हादसे को जीवित बचे लोगों ने इस तरह याद किया, जिसमें बुधवार की तड़के एक लॉरी पलट गई जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। पीड़ित सभी सब्जी विक्रेता थे जिन्होंने हावेरी के सावनूर से अपनी यात्रा शुरू की और अपनी उपज बेचने के लिए उत्तर कन्नड़ के कुमता की ओर जा रहे थे। वे हर बुधवार को ऐसा करते थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण दिन किस्मत ने कुछ और ही चाहा। दुर्घटना के समय मैं सो रहा था। एक जोरदार झटके ने मुझे जगाया और जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मैं ड्राइवर के कैबिन में था। मैंने शीशा तोड़ा और बाहर निकलने में कामयाब रहा। दुर्घटना में घायल 19 लोगों में से एक खादरी जावली ने याद किया। जावली ने कहा कि दुर्घटना स्थल पर कोई मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी। उन्होंने कहा, हमने अन्य मोटर चालकों को सतर्क किया। पुलिस सुबह 5 बजे मौके पर पहुंची। उन्होंने क्रेन मंगवाई और हमें बचाया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों। ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज का बीदर जिला कांग्रेस कार्यालय में भव्य स्वागत। मंत्री रहीम खान द्वारा भेजे गए उमरा के इमाम और मौजूद हैदराबाद के लिए बीदर से रवाना। सीएम सिद्धरामैया ने धन की कमी के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। बी श्रीरामुलु ने कोर कमेटी की बैठक के दौरान भाजपा नेतृत्व पर अनुचित व्यवहार का लगाया आरोप। आईएमडी ने उत्तर कर्नाटक में कोहरे की चेतावनी दी। वाहन चालकों से सावधानी बरतने का किया आग्रह। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।